Now, children, today let's start with chapter number 18, that is election and the government. So, in this chapter, I will tell you about the elements of election, different types of election that are held in our country, India. So, let's start with the chapter now. जो India, it's a vast country and it's impossible to rule collective. भाई इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा population है कि बहुत difficult है एक साथ इसको क्या करना, rule करें. So, we elect certain people who become our representative. They form government. And what they do, they govern the country. So that is why democratic government is also known as government of the people, by the people, and for the people. And the statement is given by Abraham Lincoln, right? The process by which representative are elected by the people of country to form the government, इसको क्या बोला जाता है? Election, right? Election requires lot of planning and organization. भाई इसके लिए आपको बहुत planning करनी पड़ती है, setup बहुत लगाना पड़ता है कि कोई cheating ना हो, right? And you have to decide the date, venue, कहाँ पे आपको करवाना है, and who will hold the election and provide all the details of the citizen. Now, elements of the election. First is voter. So, voters are the people who vote to elect their representative. All citizens, those who are above the age of 18, they have what? They have right to vote in election. Now, voting. Election Commission and identity card जो आपके जितने भी registered voters हैं उनके पास होता है. ठीक है, वोटर आईडी कार्ड जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, नेम होता है, एड्रेस होता है, एंड देयर इज अ फोटोग्राफ व्हिच इज मैंडेटरी व्हेन यू हैव टू गो टू वोट, राइट? और अब नाउ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड पीपल कैन कास्ट देयर वोट बाय जस्ट प्रेसिंग बटन. हमें क्या करना है? बटन प्रेस करना है एंड यू कैन कास्ट योर वोट. नाउ पॉलिटिकल पार्टी, द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज अबाउट हाउ टू गवर्न द कंट्री, इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, राइट? So we can say political parties use symbol of the people who unable to read and could easily identify the party. तो आपको क्या होता है? नेम तो वहाँ लिखा होता है, उसके साथ साथ वो सिंबल का इसलिए यूज करते हैं कि जो इंसान पढ़ नहीं सकता, by seeing the symbol they can recognize the party. In order to conduct free and fair election, the state is divided into smaller areas जिन्हें हम constituencies कहते हैं. One leader is elected in each constituency and one member fight in the elections. Every constitution which is termed as candidate of the political party from the particular constituency. Each constituency try to get maximum votes so that she or he can win other election of parties. The candidate who gets the maximum number of votes, जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जा, right? The political party who won maximum number of constituency forms the government and the defeated party forms the opposition. जो भी पार्टी डिफीट हुई है वो अपोजिशन फॉर्म, मतलब वो अपोजिशन होती है, राइट? देन वी हैव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. बेसिकली इन द इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो फर्स्ट इज योर union government which is in center. Now you can say that there are two form of government, union and state government. General election are held for 5 years और हम अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं. गवर्नमेंट जो आपकी सेंटर पे उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो स्टेट पे उसको स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर को लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के. यूनियन गवर्नमेंट, इसमें यूनियन लेजिस्लेचर होता है, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट असेंबली. पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज संसद, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है ये, ठीक है. एंड फंक्शन कहाँ से करती है? संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली. लोकसभा एंड राज्यसभा ये दो हाउसेस हैं. लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, राइट? So presently, if we talk about Lok Sabha, we have 540 member in the 45 member in the Lok Sabha. इसमें से 543 they are directly elected, 2 are nominated. दो भी वो होंगे जो अच्छे खासे कोई जर्नलिस्ट होंगे या सॉरी दो जो होंगे वो एंग्लो इंडियंस होंगे, राइट? दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, अपर हाउस. यहाँ पे जो मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से इलेक्ट करे जाते हैं. 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में. 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होता है. जो 12 मेंबर्स होता है उनको नॉमिनेटेड करा जाता है. जो अच्छी फील्ड से, आर्ट से, आर्किटेक्चर से, स्पोर्ट्स से, आपके सोशल सर्विस से होते हैं उनको नॉमिनेटेड. पीरियड जो होता है राज्यसभा का वो 6 ईयर का होता है. एवरी 2 ईयर जो इलेक्शन हैं दे आर हेल्ड फॉर 1/3 ऑफ द सीट. और वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिसो मेंबर, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है. देन वी हैव प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द रिपब्लिक, ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, राइट?
The elected member of both the House of Parliament, State Assembly and Legislature Assembly of Delhi, Pondicherry, elect the president. They not sit in the participate. जहाँ भी discussion होगा वहाँ पे नहीं बैठते. Now we have Prime Minister, which is the head of government appointed by President of India. ठीक है, लीडर होते हैं लोकसभा के और ये किसको अपॉइंट करता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को. एंड प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज चीफ एडवाइजर. मतलब ये चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट. देखो काम तो सारा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन साइन किससे चलेंगे? प्रेसिडेंट, राइट? Then we have state government. To form the government in state, the people of that state elect the member of legislative assemblies. Chief minister head है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करता है और ये जितने पॉलिसीज है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वो फॉर्म. गवर्नर इन ईच स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. देखो हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर होगा और उसको कौन अपॉइंट करेगा? आपका प्रेसिडेंट, राइट? इन द स्टेट लेजिस्लेचर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टू हाउस, लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान सभा भी कहते हैं और विधान परिषद भी कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है. The Chief Justice of the Supreme Court and other judges, they are appointed by the President. Each state has its own High Court and smaller court, जिनको हम Session Court. We have Supreme Court, then we have High Court, and then we have Session Court or lower. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now let's meet in the next class. Thank you.